ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਵਰਲਡ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਔਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਡੇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ? 152, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ? 117th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲੰਟਰੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਸੂਰਿਓਦੈ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ। ਸੂਰਿਓਦੈ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, या कोऑपरेटिव स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो हर एक का हैडकुआटर इंपॉर्टेंट बनेगा। आप कई बार डिस्कस किया होया है। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हैडकुआटर कितने है? नवी मुंबई दे विच। हुण न्यूज़ दे विच क्यों है इंपॉर्टेंट? न्यूज़ दे विच क्यों है? क्योंकि इसने अनाउंस किया डिसकंटिन्यू इट्स ATM सर्विसेज कि 1 अक्तूबर 2021 तो 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ATM ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ATM ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਿਓਦੈ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। वॉल सोइनका द्वारा बुक लिखी गई है। वॉल सोइनका एक फॉरेन राइटर ने, ऑथर ने, इन्हों द्वारा बुक लिखी गई है क्रोनोकाइल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। क्रोनोकाइल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ, वॉल सोइनका, ठीक है जी। टर्की कैपिटल की है? अंकारा। करंसी इत्थे उरा चलती। टर्की कैपिटल अंकारा है, करंसी इत्थे उरा चलती है। इस द्वारा अंडर वाटर म्यूजियम ओपन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने रिसेंटली एक अंडर वाटर म्यूजियम ओपन किया है? तो अपना आंसर रहेगा टर्की, ठीक है जी। टर्की द्वारा अंडर वाटर म्यूजियम की शुरुआत की। उमंगोट रिवर ऑफ मेघालय। उमंगोट रिवर स्टैटिक दे विच SSC के एग्जाम के पूछी भी जा चुकी है। उमंगोट रिवर किस स्टेट दे विच लोकेटेड है? तो कित्थे लोकेटेड है? उमंगोट रिवर मेघालय दे विच लोकेटेड है, ठीक है जी। उमंगोट रिवर ऑफ मेघालय इज़ इंडियाज़ क्लीनेस्ट रिवर वेयर बोट सीम्स इन द एयर।
ठीक है। बेसिकली उमंगोट रिवर है जो वो इन्नी ज़्यादा साफ है, अपने स्टैटिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ कि ਕਲੀਨੈਸਟ ਰਿਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲੀਨੈਸਟ ਰਿਵਰ ਕਿਸ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दूसरा पॉइंट ये कित्थे लोकेटेड है, ठीक है। कहते इन्नी ज़्यादा साफ है जिथे बोट पानी दे विच तैरदी दिखाई, बोट हवा दे विच तैरदी दिखाई देती, ठीक है। कि पानी इन्ना ज़्यादा साफ है कि दिखाई ही नहीं दिंदा, ठीक है। कि उसकी रिफ्लैक्शन पूरी तरीके नाल इस तरीके नाल बनदी है, उसकी रिफ्लैक्शन कि पानी दिखाई नहीं दिंदा और लगता है कि बोट है जो हवा दे विच तैर रही है। नेक्स्ट है 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका, 8th एडिशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति नाम की 8वें एडिशन की एक्सरसाइज है जो इंडिया ने किस कंट्री के नाल ऑर्गेनाइज की है, तो श्रीलंका दे नाल। इंडिया श्रीलंका दे नाल केड़ी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करते, तो मित्र शक्ति। किनवा एडिशन है, तो 8वां एडिशन। कित्थे ऑर्गेनाइज की गई, तो श्रीलंका के अंपारा दे विच। इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अंपारा श्रीलंका दे विच। सिंपली याद रखांगे अंपारा श्रीलंका, वेन्यू अंपारा श्रीलंका, ठीक है जी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर गोटाबाया राजपक्षा ने श्रीलंका की अगर आप गल करते हैं तो कोलंबो, कोलंबो इस दी कैपिटल है। इस तो इलावा ज़ैवर्देपुरे कोटे, ज़ैवर्देपुरे कोटे भी श्रीलंका की कैपिटल है। श्रीलंकन रूपी इत्थे दी करंसी चलती, ठीक है जी। नेक्स्ट है इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कित्थे ऑर्गेनाइज की गई, दोहा कतर दे विच, दोहा कतर दे विच। जिन्हें भी स्पोर्ट्स इवेंट्स आप रिसेंटली डिस्कस किए ने इंपोर्टेंट बन गए। फॉर एग्जांपल आर्चरी, रिसेंटली आर्चरी के बारे डिस्कस किया, इंडिया ने मैडल्स जिते, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं रिसेंटली अपने हॉकी की अगर आप गल करते हैं तो रुपिंदरपाल सिंह की गल की, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। क्रिकेट के रिलेटेड डेली वांगू आप कोई ना कोई न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्मृति मंधाना रिलेटेड, स्मृति मंधाना ने पिंक बॉल सेंचुरी कंडक्ट की है, ठीक है। रिसेंटली MS धोनी ऐसे क्रिकेटर बने थे जिन्होंने 1000 विकेट्स लेती हैं, कैचिज किए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरीके की न्यूज़ इंपोर्टेंट बनी है। इस तो इलावा एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन है जो इसका हैडकुआटर पूछा जा सकता है, तो यह बीजिंग चाइना दे विच। एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन का हैडकुआटर बीजिंग चाइना दे विच है। प्लस एक होर याद रखांगे कि अगर इंटरनेशनल लैवल पर टेबल टेनिस फेडरेशन की गल करते, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की गल करिए तो लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच, लॉजेन स्विट्जरलैंड दे विच उसका हैडकुआटर। IMF has released its report called Global Financial Stability Report। IMF द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है जी। क्वेश्चन डायरैक्टली वन लाइनर दे विच कि जिस तरीके नाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सा बैंक जारी करता है, ठीक है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट नूं रिसेंटली वर्ल्ड बैंक जारी करता सी और इसने अनाउंसमेंट की है कि यह इसनूं कंटिन्यू नहीं करेगा, इस तो बाद इसनूं जारी नहीं किया जाया करेगा, ठीक है। तो उसी तरीके नाल IMF द्वारा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की गई है। IMF की फुल फॉर्म अगर आप गल करिए तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की फुल फॉर्म, ठीक है। हैडकुआटर वाशिंगटन DC दे विच, वाशिंगटन DC दे विच 190 मैंबर कंट्रीज़ ने। लास्ट अगर आप गल करते हैं तो एंडोरा नाम की कंट्री नूं रिसेंटली इस दे विच जोड़िया गया सी, ठीक है। इसके हैड बुल्गेरिया तो बिलोंग करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कितों बिलोंग करते हैं, बुल्गेरिया तो। नेक्स्ट है सोमा शंकरा प्रसाद, सोमा शंकरा प्रसाद MD बनाए गए ने यूको बैंक के। यूको बैंक है जो
ਇਸ ਦੇ MD ਕੌਣ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਸੋਮਾ ਸ਼ੰਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਮਾ ਸ਼ੰਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। E.R. Sheikh is appointed as first Director General of Ordnance Directorate। ਆਪਾਂ कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड बारे। ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड बारे डिस्कस किया सी, तुहानूं याद होएगा कुछ दिन पहले कि इसकी अनाउंसमेंट की गई कि ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जो कि काफ़ी पहले बनाया गया सी, तकरीबन 1770s ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। 1775 ਦੇ यानी 5 ਦੇ ਵਿੱਚ आई थिंक बनाया गया सी 1775 ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्डीनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसका हैडकुआटर कोलकाता ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। इस नूं बेसिकली अनाउंसमेंट किया गया सी कि इसनूं पब्लिक सैक्टर यूनिट्स दे विच डिवाइड किया जाए। किन्ने पब्लिक सैक्टर यूनिट आप डिस्कस किए सी? 7 पब्लिक सैक्टर यूनिट डिवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो हुण अगर इसनूं डिवाइड किया जाएगा तो इसनूं डिवाइड करन दा काम किस तरीके नाल चल रहा है, उसदे लई भी एक पर्सन होणगे अपॉइंट किए जाएंगे। तो उन्होंने अपॉइंट किया गया। पहले डायरैक्टर जनरल बनाए गए ने ऑर्डीनेंस डायरैक्टोरेट दे। ऑर्डीनेंस डायरैक्टोरेट दे पहले डायरैक्टर जनरल कौन नामित किए गए? E.R. शेख। कौन नामित किए गए ने? E.R. शेख अपॉइंट किए गए। ही वॉज ऑल्सो गिवन आयुध रत्न अवार्ड 2020 लास्ट ईयर की अगर आप गल करते हैं, इन्हों आयुध रत्न अवार्ड के नाल भी सन्मानित किया गया। इस करके भी ये नाम न्यूज़ के विच सीगा इंपोर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोट GI टैग फॉर वाइट ऑनियंस। रिसेंटली डिफरेंट आप अगर गल करते हैं GI टैग डिस्कस करते आ रहे हैं, ठीक है। अगर महाराष्ट्र की गल करते हैं तो जलगांव बनाना भी महाराष्ट्र का आपने बिल्कुल रिसेंटली ही डिस्कस किया होया। उसी दे विच ऐड होंदा वाइट अनियंस नूं GI टैग मिले, कित्थे मिले? महाराष्ट्र दे विच, ठीक है जी। GI टैग्स के उत्ते क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। और इस तो इलावा आप डिस्कस किया सी कि जो GI टैग है किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दिंदी है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो ट्रिप्स है यह GI टैग जारी करती है, ठीक है। और इंडिया के विच GI टैग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हैडकुआटर है वह कित्थे है? तो वह लोकेटेड है चेन्नई दे विच, चेन्नई तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट ने M वेंकैया नायडू हैज़ प्रेजेंटेड वायुश्रेष्ठ सम्मान नेशनल अवार्ड टू VS नटराजन नूं वायुश्रेष्ठ सम्मान नैशनल अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। वायुश्रेष्ठ सम्मान नैशनल अवार्ड के नाल किन्हां नूं सन्मानित किया गया है? तो VS नटराजन अवार्ड किन्ना द्वारा दिता गया? तो वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू द्वारा इस अवार्ड नूं दिता गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है हरनाज संधू फ्रॉम चंडीगढ़। हरनाज संधू कित्थों बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हैं। इन्हों बनाया गया लीवा मिस दीवा यूनीवर्स 2021। इन्होंने लीवा मिस दीवा यूनीवर्स 2021 नाम का टाइटल जीते है, ठीक है। मिस दीवा यूनीवर्स 2021 टाइटल किन्ना जीते है? हरनाज संधू ने। कित्थों बिलोंग करते हैं? चंडीगढ़ तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड विल रिप्रेजेंट इंडिया एट मिस यूनीवर्स 2021 इन इजराइल। बेसिकली इंडिया जो मिस यूनीवर्स टाइटल है वह कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? दिसंबर के विच ऑर्गेनाइज किया जाना है इजराइल के विच। कित्थे? इजराइल के विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस दे विच इंडिया नूं कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो हरनाज संधू इस इंडिया वालों इस दे विच रिप्रेजेंट करनगे इंडिया नूं, ठीक है जी। नेक्स्ट है एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू वॉन ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021।
ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड 2021 किन्ना ने जीते? तो दीपिका पादुकोण ने जीते। नाम इंपॉर्टेंट बने क्योंकि पहले इंडियन एक्ट्रेस बने ने, पहले इंडियन एक्ट्रेस बने ने दीपिका पादुकोण। ठीक है, इस तो इलावा दीपिका पादुकोण रिसेंटली लेविस दे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सी। इंपॉर्टेंट बनेगा, लेविस दे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सी। भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव दे ऑलरेडी ब्रांड एम्बेसडर ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इस तो इलावा रिसेंटली एक होर करके न्यूज़ दे विच सीगे इन्हां नूं अवार्ड दिता गया सी, क्रिस्टल अवार्ड इन्हां नूं दिता गया सी। क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी किन्हां नूं? दीपिका पादुकोण नूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा अपनी मीटिंग दे विच इन्हां नूं क्रिस्टल अवार्ड दे नाल सन्मानित किया गया सी। नेक्स्ट है संजय भार्गव विल हेड स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया। बेसिकली जो एलन मस्क जो कि अगर रिसेंट की गल करते हैं तो वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन बन चुके हैं। ठीक है, एलन मस्क लवे डिफरेंट कंपनीज़ ने आप ऑलरेडी डिस्कस किया होया, जिन्हों के विचों स्पेसएक्स आप डिस्कस करते होंगे, टेस्ला के बारे आप डिस्कस करते होंगे, एक अद्धी बार द बोरिंग कंपनी बारे आप डिस्कस करें। तो एलन मस्क की ही एक होर कंपनी है, एक वेंचर है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर। स्टारलिंक बेसिकली ब्रॉडबैंड के रिलेटेड है, इंटरनेट कनैक्टिविटी के रिलेटेड स्टारलिंक। तो एलन मस्क ने अनाउंसमेंट की थी कि वो जल्दी ही इंडिया के विच स्टारलिंक लेके आ रहे हैं, इंडिया के विच अपनी इंटरनेट सर्विस नूं लेके आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके ना रिलायंस की जियो सर्विस है, ठीक है, या वोडाफोन आइडिया VI की अगर आप गल करते हैं या एयरटेल की अगर आप गल करते हैं, तो उसी तरीके नाल स्टारलिंक नाम की कंपनी इंडिया के विच आ रही है। ठीक है, इस दे इंडिया के विच हैड कौन करनगे इसनूं? तो संजय भार्गव इंडिया के विच इस कंपनी नूं हैड करनगे। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ पेपैल नाम की जो सर्विस ने, इसकी शुरुआत भी इन्हों द्वारा ही की गई सी, संजय भार्गव द्वारा की गई सी। ठीक है जी, इस तो इलावा स्पेसएक्स के विच भी काफ़ी अच्छा रोल रहा इन्हों का संजय भार्गव का। हुण ये इंडिया के लिए अपॉइंट किए जाएंगे स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर के लिए। आलोक मिश्रा नूं MD बनाया गया है, मैनेजिंग डायरैक्टर बनाया गया है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है जो इसके MD कौन बनाए गए ने? आलोक मिश्रा बनाए गए। ठीक है, बेसिकली इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड द्वारा ही जो ईरान का छाबहार पोर्ट है जो ईरान का उसनूं डेवलप किया गया। ठीक है, पर डिस्कस किया है कि आई थिंक एग्जाम के क्वेश्चन भी पूछा जा चुका इतों कि ईरान जो पोर्ट है, किस पोर्ट नूं ईरान के किस पोर्ट नूं इंडिया द्वारा डेवलप किया गया, तो छाबहार पोर्ट। ठीक है, तो उसी छाबहार पोर्ट नूं डेवलप करने दे विच जो इंडिया वालों इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है ऑन द ओकेजन ऑफ 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी का 152nd रही है। इस गांधी म्यूजियम नूं भी इनॉग्रेट किया। डिफरेंट और चीज़ां आप डिस्कस करियाँ, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, या अगर आप गल करते हैं टैप वाटर कनैक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कोष एक फंड की शुरुआत की गई, या आप गल करिए लद्दाख के बारे डिस्कस किया अपने लेह दे विच स्टैचू नैशनल फ्लैग वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवील किया गया, इनॉग्रेट किया गया लद्दाख के लैफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर द्वारा। उसी तरीके नाल गांधी म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया हिस्टोरिक गांधी आश्रम ट्रस्ट दे विच। गांधी आश्रम ट्रस्ट कित्थे है? नौखाली बांग्लादेश दे विच गांधी म्यूजियम की भी शुरुआत की गई। गांधी म्यूजियम नूं भी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है इंडिया विल प्रोवाइड 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट अनाउंस किया, लोन अनाउंस किया किसनूं? श्रीलंका नूं। बेसिकली इंडिया के जो फॉरन सैक्रटरी हर्षवर्धन श्रिंगला ने वह विजिट पर गए सी श्रीलंका की, तो डिफरेंट एग्रीमेंट साइन होए जिसदे विचों 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट सोलर एनर्जी सैक्टर के लिए इंडिया प्रोवाइड करेगा श्रीलंका।
ठीक है जी। अच्छा, तो इंडिया वालों कौन प्रोवाइड करता होंगे? इंडिया वालों आप डिस्कस किया एग्जिम बैंक है। इंडिया दे विच एक एग्जिम बैंक है जिसनों फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या एग्जिम बैंक है जो 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी। मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ हैडकुआटर है और यह बैंक 100 मिलियन US डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा श्रीलंका। सिमिलरली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लाइन ऑफ क्रेडिट 15 मिलियन 100 मिलियन आप डिस्कस किया श्रीलंका नूं 100 मिलियन श्रीलंका नूं। इसी तरीके नाल 15 मिलियन रीहैबिलिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज़ इन सियारा लियोन जो कंट्री दे विच एग्जिस्टिंग पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज़ नूं रीहैबिलिटेट करन दे लई उन्हां नूं बेहतर बनाने के लिए सिंपली अगर आप गल करिए सिंपल भाषा दे विच वाटर फैसिलिटीज़ नूं बेहतर बनाने के लिए 15 मिलियन डॉलर कौन खर्च करेगा? इंडिया खर्च करेगा। कौन लोन दे रहा है? इंडिया लोन दे रहा है। इंडिया वालों एग्जिम बैंक लोन देगा। ठीक है। इस तो अलावा वर्ल्ड स्पेस वीक वाइल्ड लाइफ वीक डिस्कस किया अपने। ठीक है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। सिमिलर तरीके नाल वर्ल्ड स्पेस वीक की शुरुआत की गई है 4 अक्तूबर तो 4 तो लैके 10 अक्तूबर तक वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाए टू सैलीब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टैक्नोलॉजी टू द बैटरमेंट ऑफ ह्यूमन कंडीशनस नूं बैटर करने के लिए स्पेस साइंस और टैक्नोलॉजी का जो रोल है उसदे लई उसनूं सैलीब्रेट करने के लिए 4 तो 10 अक्तूबर तक स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाए। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, मैं पहले कह रहा वूमेन इन स्पेस इसकी थीम रही। ठीक है जी। तो आज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन कल तो अपना सैशन प्रॉपर सैशन रहेगा। बेसिकली अज थोड़ा टाइपिंग करके थोड़ी प्रॉब्लम आई है क्योंकि मेरे हाथ दे विच फ्रैक्चर लगे। ठीक है, तो माफ़ी चाहांगे और आशा करेंगे कि तुहानूं सैशन पसंद आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।